Hello students, so welcome to next lecture, that is the lecture number 9 of some basic concepts of chemistry. In our previous lecture we discussed one of the concentration terms, that is the percentage method. I told you how to drive relation between the various concentration terms over there. So next concentration term is your molarity. Next concentration term is molarity. It is denoted by letter capital M. And how it is defined as? It is defined as number of moles of a solute which is dissolved in 1 liter of solution. 1 liter of solution. That is, if I say that I have 2 moles of sodium hydroxide NaOH and I dissolve it in 1 liter of solution. I dissolve it in some amount of water. When it is completely solved, I make up the total volume to 1 liter. Then the molarity of that solution will be 2. So mathematically we can define molarity as number of moles of solute divided by volume of solution in liters. Volume of solution in liter. If we are taking up the volume of solution in milliliters instead of liters, then we can write number of moles of solute divided by volume of solution in milliliter multiplied by 1000. Because we have to take the volume in liter, तो यहाँ पे milliliter लेंगे तो milliliter by 1000, that will be the volume in liter, तो 1000 will go above in this relation. So this is number of moles of solute. So if I denote the number of moles of solute by N, volume of solution in milliliter by V and multiplied by 1000. So from this relation we can also calculate M into V, that is equal to 1000 into N, whereas I have told you N is the number of moles of solute. So if you have to calculate the number of moles of solute in a solution of given molarity, then it will be given by number of moles of solute will be equal to molarity multiplied by the volume divided by the 1000. So this is how we can calculate the number of moles also which is present in a given amount of solution or given volume of a solution if the molarity of solution is given to us. So this is the molarity. The next concentration term which we use is, that is called molality. That is called molality, small m, and it is defined as number of moles of solute which is dissolved in 1 kilogram of solvent. 1 kilogram of solvent. यहाँ ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो हम अमाउंट फिक्स कर रहे हैं वो सॉल्यूशन का फिक्स ना करके सॉल्वेंट का कर रहे हैं, और वो भी हम किलोग्राम्स में ले रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, ना कि
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। इसका मतलब ये है, मान लीजिए इफ आई हैव 2 मोल्स ऑफ NaOH and I dissolve it in 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 किलो वाटर लिया मैंने, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर लिया और उसमें आपने 2 मोल ऑफ NaOH के डाल दिए, देन द मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन विल बी 2। इफ वी डिजॉल्व 1 मोल ऑफ NaOH in 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, then the molality of solution will be your 1। so this is the molality। एक चीज और ध्यान रखनी है, आप नंबर ऑफ मोल्स को वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से भी यूज कर सकते हैं। तो उस टर्म में आप मैथमेटिकली अगर लिखेंगे इसको, देन योर मोलैलिटी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को जनरली हम सफिक्स W2 से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हेयर weight of solvent in kilogram, or if the weight is taken in gram, then we can write it as weight of solvent in gram। और क्योंकि इसको किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, that 1000 will go above। so this is how we can calculate। तो मोलैलिटी की इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ मोल से लिखें, नंबर ऑफ मोल्स n हो तो n डिवाइडेड बाई W1 इंटू 1000, दैट इज n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, W1 इज द वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इन ग्राम्स, एंड 1000 is just multiplied to change this weight into kilograms, because we have to take the weight of solvent in kilogram। सेम थिंग वी कैन ऑल्सो अप्लाई टू मोलैरिटी। मोलैरिटी में भी आप जो है नंबर ऑफ मोल्स की जगह वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है, द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। एंड what is normality? It is defined as number of gram equivalents of solute which is dissolved in 1 liter of solution, dissolved in 1 liter of solution। so if we write down it mathematically, so normality will be equal to number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liter, and if we take the volume of solute in milliliter, then we can write number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in milliliter multiplied by 1000। and what is this number of gram equivalent? Number of gram equivalent is weight of solute divided by equivalent weight of solute, volume of solution in milliliter multiplied by 1000, where E2 is equivalent weight, E2 is equivalent weight of solute, equivalent weight of solute। Wt is the weight of solute, E2 is the equivalent weight of solute। so this is your normality। अगर हम इस रिलेशन को
दोबारा से लिखें तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैंने n से लिख दिया एंड वॉल्यूम को v से लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 1000. सो दिस इज द नॉर्मेलिटी. सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विल बी n इंटू वी बाई 1000. तो अगर आपको एक गिवन नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हो, तो आप नॉर्मेलिटी ऑफ द गिवन सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ दैट सोल्यूशन इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000. अगर ये वॉल्यूम लीटर में लेंगे आप तो इट विल बी सिंपली और n विल बी इक्वल टू n इंटू वी इफ v इज इन लीटर. अगर वॉल्यूम आपका लीटर में है तो सीधा नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. अब इसमें एक टर्म यूज किया हमने, इक्विवेलेंट वेट. सो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? व्हाट इज योर इक्विवेलेंट वेट? इफ वी गो बाय द डेफिनेशन, अगर हम इसकी डेफिनेशन बात करें, रिलेशंस की बात बाद में करेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस is that weight which either combine with or displaces 8 parts by mass of oxygen or 35.5 parts by mass of chlorine or 108 parts by mass of silver. This is the definition of the equivalent weight. Let me explain what is meant by this definition. If we burn calcium in an atmosphere of oxygen, you get calcium oxide. What you get calcium oxide. Here 2 into कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40. सो 2 into 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज कंबाइनिंग विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. हमने वो वेट निकालना है कैल्शियम का जो 8 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करे. 8 पार्ट मीन्स 8 ग्राम के साथ कंबाइन करें. सो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना कैल्शियम कंबाइन करेगा? 2 into 40 डिवाइडेड बाई 32 into 8. So we can say that it will be 20. So 8 gram of oxygen in this reaction is combining with 20 gram of calcium. Therefore equivalent weight of calcium metal will be 20. इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा. मतलब जो किसी भी चीज़ का, किसी भी एलिमेंट का वो वेट जो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे उसको हम उसका इक्विवेलेंट वेट कहते हैं. सिमिलरली इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इन ऑल केसेस ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग. सो द सेकेंड थिंग इज इफ इट लिबरेट्स, इवॉल्व्स, दैट इज डिस्प्लेसेस 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. जैसे KClO3 है, you heat this, it decompose to give 2 KCl plus 3 O2 gas. अगर हम इसको देखें तो 2 into molecular mass, इसके 2 मोल है and 1 mole is molecular mass in grams. इतना वेट कितनी ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है? 3 into 32 ग्राम्स को. सो 8 ग्राम ऑफ क्लोरीन को
8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को कितना KClO3 डिस्प्लेस करेगा? 2 इंटू मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 3 इंटू 32 इंटू 8. So it will come out to be molecular mass by 6. So this is the equivalent mass of your KClO3. So अगर आप न्यूमेरिकली निकालना चाहते हैं तो कैल्शियम पोटेशियम का आपका एटॉमिक मास होता है 39 पॉइंट समथिंग, 39.9, मैं 39 ले रहा हूँ इसको रफली 39. क्लोरीन का होता है 35.5, ऑक्सीजन का 16 इंटू 348, सो 5, 22 एंड 122 डिवाइडेड बाई 6, दैट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ योर KClO3. तो या तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दे या 8 ग्राम ऑक्सीजन को जो वेट निकाल दे किसी चीज़ का, वो उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाता है. बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई एलिमेंट इफ इट इज़ नॉट कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन देन वी विल गो फॉर द क्लोरीन. We will be observing how much weight of that substance is combining with 35.5 gram of chlorine or it is displacing 35.5 gram of chlorine. And if that is not possible, then we will go with the silver. So you can carry out those two terms, chlorine और silver के साथ आप और देख सकते हैं, ठीक है. So I am just restricting my discussion to this. So this is the definition of equivalent mass. Now equivalent mass of substances are related by a various relation. For example, equivalent mass or equivalent weight of an element, it is equal to atomic mass of that element divided by n, where n is valency of element. N is valency of element. जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम, मैं निकाल के दिखा रहा हूं कि वही आएगा जो 20 निकाला था हमने. इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, वैलेंसी कितनी होती है 2, सो इट्स इक्विवेलेंट मास इज 20. वहां भी हमने डेफिनेशन से भी 20 निकाला था. तो किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है देन यू विल बी यूजिंग दिस रिलेशन. यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है, एक होता है डुलोंग पेटिट लॉ. डुलोंग पेटिट लॉ वो ये कहता है कि एटॉमिक हीट कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक हीट कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स इज रफली और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4. सो एटॉमिक हीट कैपेसिटी that is equal to roughly 6.4 for most of the metals. ज़्यादातर मेटल्स के साथ है, हर एक के केस में नहीं होता, हर एलिमेंट के केस में. ज़्यादातर एलिमेंट्स के केस के अंदर हम मेटलिक एलिमेंट्स के अंदर ये चीज़ आती है. और एटॉमिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? एटॉमिक हीट कैपेसिटी होती है स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट, that is equal to 6.4. So this relation give us that atomic weight that is equal to roughly 6.4 divided by specific heat of that element. If we use this relation for the atomic weight over here, then your equivalent mass of element, equivalent mass that can be written as 6.4 divided by specific heat of element multiplied by n, where n is the valency of the element and specific heat. Specific heat को कुछ जगहों पे हम s से भी डिनोट करते हैं. So in some cases if you are not given the atomic weight but specific heat of the metal is given,
then you can use this Dulong-Spetit's law to calculate the equivalent mass of that element. Next we are going to discuss the equivalent mass of an acid. Equivalent mass of an acid. Equivalent mass of an acid is given by molecular mass of acid divided by n. हमारे बार इस n को यूज करेंगे एंड दिस विल n will be different values in different relations where n is basicity of an acid, where n is basicity of an acid. Now we have used this one more term, that is basicity. So what is basicity? Basicity is number of हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, एक ही बात है, चाहे हाइड्रोजन आयन लिखें चाहे हाइड्रोनियम आयन लिखें, furnished by a molecule of compound, furnished by a molecule of compound in its solution, in its solution. के सॉल्यूशन में वो कितने H प्लस या H3O प्लस देता है. जैसे HCl है, इसको अगर आप पानी में डिजोल्व करेंगे इट विल गिव यू H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस. सो हाउ मच H प्लस इट हैज गिवन? इट हैज गिवन ओनली 1 H प्लस. सो दिस हैज ए बेसिसिटी ऑफ 1. बेसिसिटी ऑफ HCl विल बी 1 because it is giving only 1 H plus. अगर सल्फ्यूरिक एसिड को डिजोल्व करें हम एक्वस सॉल्यूशन में, इट गिव यू 2 H plus एक्वस प्लस SO4 2 minus. So how much H plus it is giving? It is giving you 2 H plus in the solution. So its basicity will be 2. So in case of acids it will be basicity of the acid. यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप basicity, although in most of the cases it is equal to the hydrogen present in that molecule of acid, but it is not always true. For example H3PO3, मैं आपको बता देता हूँ. ये अब ये H3PO3 है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो एक मॉलिक्यूल में 3 है, लेकिन जब ये डिसोसिएट होता है तो ये सिर्फ 2H प्लस आयंस देता है सॉल्यूशन में. 2H प्लस HPO3 माइनस 2. तो इसकी बेसिसिटी 2 है, नॉट 3. तो ये ध्यान रखना है, बेसिसिटी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड और दैट एसिड. सो दिस इज अबाउट द इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड. सिमिलरली we can also go by equivalent mass of a base. Again it is equal to molecular mass of base by n. Now here n is acidity, n is acidity of a base, acidity of a base. And what is acidity? Just like acid, acidity of a base is number of hydroxyl ion, that is OH minus, furnished by a molecule in its solution. For example, NaOH when dissolved in water give 1 OH negative, so its acidity is 1. If you take calcium chloride, it will give you calcium hydroxide, sorry. If you take calcium hydroxide dissolved in water, it will give you 2 ions of OH minus, so its acidity will be 2. Acidity is 2. ये ध्यान रखना है आपने.
तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस हो गया ये। नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड? द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड is equal to molecular mass. I just write it over here. Equivalent weight or equivalent mass of a compound, it is equal to molecular mass of compound divided by n, where this n is total positive or negative charge on cation or anion, or you can say it is the total valence of the atom forming cation or anion. जैसे for example, if we wish to calculate the equivalent mass of calcium phosphate, अगर हम calcium phosphate का equivalent mass निकालना चाह रहे हैं, then your equivalent mass of your calcium phosphate that will be equal to molecular mass divided by, यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, कितने एटम है 3, तो टोटल वैलेंस कितना हो गया, टोटल वैलेंस कितना हो गया 2 इंटू 3 दैट इज 6, सो मॉलिक्यूलर मास बाई 6। अगर हम फॉस्फेट की वैलेंस यूज करेंगे तो इसकी वैलेंस होती है 3, वैलेंसी 3 कितने हैं 2, तो अगेन 3 इंटू 2 6, सो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन दिस विल बी मॉलिक्यूलर मास बाई 6। इसी तरीके से इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड इन रिडॉक्स रिएक्शन, इन ए रिडॉक्स रिएक्शन that will be equal to molecular mass divided by n, where n is change in oxidation number, change in oxidation number of any element of compound। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर हम जो है जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स द फॉर्मल चार्ज विच अपीयर्स ऑन एन एटम ऑफ एलिमेंट व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव्ड वन बाय वन। और जब बाकी एटम्स को रिमूव करेंगे देन वी विल बी कीपिंग इट इन माइंड that the atom with more electronegativity will depart with a pair of electrons। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन सा एटम लेके जाएगा अपने साथ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो जो चार्ज आएगा वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर, एक एटम पे जो चार्ज आएगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम इसमें अब ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मोस्ट ऑफ द रिलेशन मैंने बता दिया है। कुछ लोग जो ये मैं एन लिख रहा हूँ बार बार, बहुत से लोगों को ये प्रैक्टिस है, वो इसको एन फैक्टर बोलते हैं। आप इसको किसी भी नाम से जाने, एन की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, कहीं पे ये वैलेंसी है, कहीं पे ये आपका एसिडिटी है, कहीं बेसिसिटी है, बट यू रिमेंबर दैट हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास। अब हम आते हैं अगेन ऑन द सेम थिंग कि आप किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक रिलेशन निकलवा रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मैंने कहा था सबसे बढ़िया तरीका होता है किन्हीं भी दो कंसंट्रेशन टर्म के बीच में रिलेशन निकालने का कि आप उनको डिवाइड कर दो।
तो अभी हम पढ़ के आए थे मोलैरिटी किसके बराबर होती है, मोलैरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एंड नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, आई एम डिनोटिंग इट बाय n डैश डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है आई एम टेक इट इन लीटर, इन लीटर। नाउ नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वी, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी किसके बराबर होते हैं, ये होते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वी। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। इफ वी डिवाइड 1/2, डिवाइड 1/2, your m/n that will be equal to W2 डिवाइडेड बाई m2 इंटू v। इसके नीचे ये डालेंगे तो नीचे आएगा W2 और ये सारी टर्म का चल जाएगी, ऊपर चली जाएगी E2 इंटू वी, E2 इंटू वी। तो आपका v से v कट गया, W2 से W2 कट गया, ये हमारे पास आ गया E2 बाई m2। अभी हम क्या पढ़ के आए, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई n। सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, सो मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर हो जाएगा हमारा, मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू n इंटू इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट, वट एवर यू वांट टू राइट। तो अगर मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू हम इस रिलेशन से पुट कर दें देन इट विल बी इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाई n इंटू E2। तो E2 से E2 कट गया, तो इससे क्या पता लगा हमें, दिस इम्प्लाइज दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलैरिटी, n इंटू मोलैरिटी, वेयर n इज योर वैलेंसी, बेसिसिटी, एसिडिटी, total valence, whatever n we have discussed in our previous topic। जब अभी थोड़ा सा जो पढ़ा है वहाँ पे मैंने n की अलग अलग वैल्यूज़ बताई हैं आपको। तो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू n इंटू मोलैरिटी। सो दिस इज द सिंपल रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। Hello everyone, if you found the content helpful then kindly share this video with your friends. Also don't forget to like and subscribe. Happy learning!